Good morning, students. In the last video of class 11th accountancy, we discussed accounting for goods and service tax. Under this topic, we discussed various theoretical as well as the practical concept related to the goods and service tax. We discussed the various features of goods and service tax, slab rate of goods and service taxes. They are basically 5 slab rates for the goods and service tax, advantages or benefits of goods and service tax, as well as types of taxes under GST. You know very well there are basically 3 types of taxes under GST. The first one is central GST, second one is a state GST, which is also known as union territory GST, and in third one is the integrated GST. Central GST denotes the any amount of GST which are received by central government, whereas a state GST or union territory GST are levied on the intra-state sale. When any sales done within the same state, in this situation SGST or UTGST will be charged. For example, Rajasthan sell goods to a dealer of in Rajasthan for rupees 50,000 and GST is 12%. So this rate will be comprised of CGST at 6% and SGST at 6%. The seller has to collect 12% of 50,000, that is 6,000, out of which 3,000 will be CGST, which will be go to the central government, and 3,000 will be SGST, which will go to the Rajasthan government. And number third is integrated GST. It is levied on the interstate sale of goods and service outside the state. It means the sales between two states. It is also levied on the import of goods and service into the India and export of the goods and services from India. For example, dealer of Rajasthan sell goods to a dealer in Madhya Pradesh worth rupees 50,000 and IGST rate is 12%. In such case, the seller will charge 6,000 as IGST because the transaction took place between two states, that is Rajasthan and Madhya Pradesh, and the amount 6,000 will go to the central government, and GST collected under IGST is divided between central and state government as per rate specified by government. The most and not important part is, if GST rate is 12%, it will comprise of 6% CGST and 6% SGST. In case of sale outside the state, it will be called IGST. Means अगर कोई GST का रेट 12% है और विद इन स्टेट सेल हो रहा है स्टेट के अंदर, तो 6% CGST लगेगा, 6% SGST लगेगा, और अगर स्टेट के बाहर सेल हो रहा है तो उस केस में 12% का IGST चार्ज होगा. कोई CGST IGST में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा. Similarly, if GST rate is 18%, it will comprise 9% CGST and 9% SGST. In case of sale outside the state, it will be called IGST 18% and so on. उसी तरह से अगर GST का रेट 18% है तो अगर सेल विद इन स्टेट होता है तो 9% CGST 9% SGST चार्ज होगा, और अगर सेल आउटसाइड इंडिया के स्टेट के बाहर सेल हो रहा है तो उस केस में IGST 18% चार्ज होगा. द नेक्स्ट वन इज़ अ रिवर्स चार्ज. व्हाट इज़ रिवर्स चार्ज? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द goods and service tax. Certain purchase of goods and services are placed under reverse charge. Reverse charge means that GST is not paid by the seller but it is paid by the purchaser to the government. Generally हम लोग देख रहे हैं कि सेलर क्या करता है, गुड्स सेल करता है परचेज़र को, और परचेज़र क्या करता है, अमाउंट पे करता है सेलर को, गुड्स की अमाउंट भी पे करता है और साथ ही साथ GST भी पे करता है, और ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गवर्नमेंट को जाके GST पे करे. सपोज सेलर ने 10,000 रुपीज़ का गुड सेल किया परचेज़र को और 6% GST कलेक्ट किया, 12% GST कलेक्ट किया, तो जितना CGST का हिस्सा बनेगा, जितना SGST का हिस्सा बनेगा, वो सब इंटायरली विल बी गिवन टू द गवर्नमेंट. बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे सेलर
गवर्नमेंट को पैसा नहीं देता, बल्कि परचेज़र की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जाकर जीएसटी का पैसा पे करे। यानी रिवर्स चार्ज मीन्स इट इज़ एन एनी सिचुएशन वेयर जीएसटी इज़ नॉट चार्ज बाय द सेलर बट इट इज़ पेड बाय द परचेज़र टू द गवर्नमेंट एंड क्लेम इट एज इनपुट जीएसटी। सपोज़ ये सेलर है और ये परचेज़र है। नॉर्मल कंडीशन में सेलर ने गुड्स सेल किया और पैसा लिया, वैल्यू ऑफ द गुड्स लिया एज वेल एज जीएसटी लिया। अब जीएसटी में जिसका सी सेंट्रल बनता है, स्टेट बनता है, वो जाकर उसको गवर्नमेंट को देता है। नॉर्मली सिचुएशन यही होती। बट रिवर्स चार्ज में एक ऐसा ऑब्लिगेशन होता है जहाँ पर सेल करता है या एक बंदा परचेस करता है, तो सिचुएशन में सेलर सेल करता है, परचेज़र परचेस करता है, बट जीएसटी का अमाउंट सेलर कलेक्ट ना करके बल्कि परचेज़र की इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जाकर जीएसटी का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करे एंड उसे इनपुट जीएसटी की तरह ट्रीट करे। अब वो किस किस सिचुएशन में होता है, लेट डिस्कस इट। सो रिवर्स चार्ज मीन्स दैट द जीएसटी इज़ नॉट चार्ज बाय द सेलर बट इट इज़ पेड बाय द परचेज़र टू द गवर्नमेंट एंड क्लेम इट एज इनपुट जीएसटी। Goods and service placed under reverse charge are purchase of goods and services by registered dealer from the unregistered person। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर से, ठीक है, यानी जो सेल कर रहा है और ये परचेस कर रहा है, परचेज़र को पता है कि हम जिसके यहाँ से सामान खरीद रहे हैं वो जीएसटी पे नहीं करता, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो परचेज़र की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाकर जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को दे। परचेज़र ये नहीं कह सकता है कि मैंने उसको जीएसटी दे दिया, वो पे कर रहा है नहीं पे कर रहा है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट जीएसटी एक्ट में अब ऐसा एक्ट ला दिया गया है जहाँ पे परचेज़र भी जीएसटी पे करने के लिए लायबल हो सकता है अगर उसे पता है कि वो जहाँ से सामान खरीद रहा है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट आएगा कि सर परचेज़र तो कह देगा हमको पता ही नहीं है। जब हम इनवॉइस लेते हैं तो इनवॉइस में क्लियरली मेंशन होता है कि उसका जीएसटी नंबर है कि नहीं। तो जब कोई परचेज़र परचेज़ करता है किसी गुड्स एंड सर्विसेज को और उसका इनवॉइस लेता है तो उसे 100% श्योर होता है कि सामने वाला बंदा यानी सेलर इज़ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और नॉट। सो द परचेज़र हैव टू रेडी अबाउट द पेमेंट ऑफ द जीएसटी either by seller either by himself। So it is very important point कि if any person purchase any goods from the unregistered dealer, so in this situation he will liable to pay the amount of GST। The next one is payment of fee of to lawyer। ये important point है कि हम अपने lawyer means अगर हम वकील को फ़ी पे करते हैं तो वकील को हम जीएसटी पे नहीं करते हैं, वकील को सिर्फ उसकी फ़ी पे करते हैं। बाकी जो पैसा उस पर जीएसटी चार्ज हो रहा है क्योंकि इट इज़ लिस्टेड इन द सर्विस, सो पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाकर गवर्नमेंट को उस पर जीएसटी प्रोवाइड करे। यूज़ ऑफ कॉपीराइट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस कंपनी कमीशन। तो इस सिचुएशन में आपको खुद जो कि पेयर है, जो सर्विस बेनिफिट है, उसे जाकर गुड्स जीएसटी की अमाउंट गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है। So it is a very important point, reverse charge। Okay, now we will move to the accounting procedure। It is very important part. This is journal entry related to the goods and service tax। Accounting procedure in case of intra-state supply of goods and services, it means sales within the same state। यानी अगर हम goods and service को स्टेट के अंदर सेल करते हैं, विद इन अ स्टेट सेल करते हैं, तो उस केस में हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, लेट डिस्कस इट। द फर्स्ट वन इज़ फॉर परचेज ऑफ गुड्स। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं स्टेट के अंदर, सो सिचुएशन में एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक टू क्रेडिटर। अब बैंक तब लिखेंगे जब हम कैश में या बैंक में पे करेंगे, और क्रेडिटर तब लिखेंगे जब व्हेन वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो गिवर का नाम लिखेंगे। नंबर सेकेंड, फर्स्ट सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स जस्ट अपोजिट बैंक और डेटर अकाउंट डेबिट। बैंक जब कैश में पैसा मिलेगा और डेटर जब हम लोग क्रेडिट पे सेल करेंगे। टू सेल्स टू आउटपुट GST टू आउटपुट SGST गुड्स। सो इट इज़ अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ये दो कॉन्सेप्ट तो होते ही थे, बट इसमें
सेल के टाइम पे आपने देखा आउटपुट जीएसटी यूज़ हो रहा है, बिकॉज यू नो वेरी वेल एट द टाइम ऑफ सेल you collect the GST and collected GST will be termed as output CGST, and when you purchase any goods, so you paid the GST. So in this situation you termed as a GST is a input GST. So input GST you know very well कि दो जब आप स्टेट के अंदर सेल करते हो या परचेस करते हो तो CGST एंड SGST चार्ज होता है वो 50%. सपोज 12% रेट ऑफ GST है तो 6% फॉर द CGST एंड SGST फॉर द 6% फॉर द SGST. तो आई होप क्लियर है ये इनपुट क्यों वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ आउटपुट क्यों यूज़ हुआ है. ये टर्म्ड है कि जब हम परचेस करते हैं तो जीएसटी पे करते हैं, पे करते समय इनपुट यूज़ करते हैं और रिसीव करते समय आउटपुट करते हैं. और CGST SGST क्यों यूज़ हुआ है, बिकॉज ऑफ जो परचेज एंड सेल हो रहा है वो विद इन स्टेट हो रहा है, और विद इन स्टेट के केस में जीएसटी का 50% जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, 50% SGST को जाता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है. फॉर परचेज रिटर्न यू नो, अगर हम कोई परचेज रिटर्न करते हैं तो आपको पता है कि जो भी परचेज के टाइम हमने जीएसटी बॉर्न किया है, जो जीएसटी हमने पे किया है वो रिटर्न आ जाता है. सो इन केस ऑफ परचेज रिटर्न क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST. ओके, जो परचेज के टाइम आपने जीएसटी पे किया है वो रिवर्स्ड हो जाती है. In case of purchase return, input CGST and input SGST are credited because at the time of purchase input CGST and input SGST were debited. वहाँ डेबिट हुआ है, यहाँ क्रेडिट होकर उसकी वैल्यू को ख़त्म कर देते हैं. उसी तरह से फॉर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट CGST आउटपुट SGST टू डेटर. तो सेल्स रिटर्न के केस में यू नो कि सेल्स के टाइम में आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था. तो जब हम सेल्स को रिटर्न करेंगे तो इन दिस सिचुएशन जो आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST उसको हम रिवर्स्ड डेबिट कर देंगे. इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST आर डेबिटेड बिकॉज एट द टाइम ऑफ सेल आउटपुट CGST अकाउंट एंड आउटपुट SGST अकाउंट वेर क्रेडिटेड. तो सिंपल सी पॉइंट है कि जब हम परचेस कर रहे हैं तो इनपुट CGST एंड SGST दोनों को क्या करता हूँ, डेबिट. लेकिन जब परचेज रिटर्न हो रहा है तो इनपुट CGST हो या SGST उन दोनों को क्रेडिट करके परचेज के टाइम जो मुझे इनपुट मिला था उससे परचेज रिटर्न के साथ उसको कैंसिल कर रहा हूँ. वो सेम एज इट इज़ इन केस ऑफ सेल्स आउटपुट CGST एंड SGST क्या होता है, क्रेडिट होता है. वेयर एज सेल्स रिटर्न के केस में आउटपुट CGST हो चाहे SGST हो डेबिट होके हम उसको कैंसिल कर देते हैं. नाउ नेक्स्ट इज फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. इफ़ यू परचेज एनी फिक्स्ड एसेट्स यू नो वेरी वेल द सिंपल एंट्री विल बी फिक्स्ड एसेट्स टू बैंक, जो पहले हम लोग करते आए हैं. Suppose you purchase a fixed asset and paid a GST. So in this situation you paid the GST. In case of paid of GST you know very well. And if you paid the GST within a state के अंदर ही आप फिक्स एसेट्स को खरीद रहे हो तो उस सिचुएशन में यहाँ पे अब क्या लगेगा, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST चार्ज होगा. सेम it is in case of expense. If you paid any expense, so the expense account debit to bank, it is a simple entry which are also passed in the past chapters. So expense account debit to bank, but when we paid the expense along with the GST, in this situation input CGST and input SGST will be debited because we paid the GST, and when we paid the GST it will be termed as the input GST. The next one is for income. Suppose we received a commission, we received any commission as well as GST, so you received the GST. So in this situation you will be termed as GST is output GST, and the normal entry will be bank account debit to commission received, but you will have to receive the GST. So in this situation to output CGST and output SGST will also be credited because you received a commission along with the GST. Number 8, for goods withdrawn by the proprietor for personal use. You know very well there are special situation when any businessman withdraw a amount or any goods from the business for personal use. If he withdrawn a amount from the business for personal use, in this situation,
So if in case of any owner withdrawn the any amount from the business for personal use, यानी अगर वो कैश बिजनेस से निकालता है पर्सनल यूज़ पे, तो यू नो वेरी वेल कि कैश पे तो कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता है. लेकिन अगर वही ओनर बिजनेस से पैसा ना निकाल के गुड्स निकाले फॉर द पर्सनल यूज़, तो यू नो वेरी वेल गुड्स जब वो परचेस किया होगा तो उस पर जीएसटी पे किया होगा. जब वो गुड्स मैन्युफैक्चर किया होगा तो उस पर जीएसटी पे किया होगा. सो इन दिस सिचुएशन द प्रोप्राइटर विल ऑल्सो बॉन्ड टू द जीएसटी अमाउंट, क्योंकि जब वो परचेस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, सो इन दिस सिचुएशन ही विल पे द जीएसटी. सो व्हेन ही विदड्रॉन द any goods from the business for personal use, so in this situation inputs GST or SGST will be cancelled, will be reversed. जैसा मैंने आपको कुछ समय पहले बताया भी था एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर कि कभी कभी जो हम इनपुट जीएसटी होता है या आउटपुट जीएसटी होता है उसको हम लोग रिवर्स भी करते हैं. यानी अगर इनपुट जीएसटी को डेबिट करते हैं तो कुछ कंडीशन होती है जहाँ पे हम उसको क्रेडिट भी करते हैं. वेयर इट इज़ कि अगर हम कभी कभी आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हमें आउटपुट जीएसटी को हम लोग इसलिए क्रेडिट करते हैं बिकॉज ऑफ वो पैसा हमको मिलता है, इट इज़ अ लायबिलिटी. बट सम सिचुएशन in which we output GST will be debited. So basically the information is this कि if any owner withdrawn the goods for personal use, so in this situation input GST will be reversed, it will be a credited instead of debited. So the entry will be drawing account debit to purchase, you know very well. ये तो पहले से जानते हैं कि गुड्स जब हम पर्सनल पर्पस के लिए निकालते हैं तो एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज एज वेल एज इनपुट जीएसटी विल बी रिवर्स्ड. सो इनपुट CGST एंड इनपुट SGST विल बी क्रेडिटेड. द नेक्स्ट वन इज फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैम्पल लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर और गुड्स स्टोलन. यू नो वेरी वेल कि हम गुड्स को फ्री सैम्पल में भी बांट देते हैं या फिर हमारा जो गुड्स होता है वो फायर से या स्टोलन के कारण लॉस्ट हो जाता है. So it is also a situation where we credited the purchase. ये एंट्री हमने प्रीवियसली डिस्कस भी की है. अगर हम फ्री सैम्पल में बांटते हैं तो सो द एडवर्टाइजमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड. इफ गुड्स लॉस बाई फायर सो द एंट्री विल बी लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट. एंड इफ गुड्स स्टोलन बाई लॉस बाई थेफ्ट, सो इन दिस सिचुएशन लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस. अलॉन्ग विद दिस इनपुट CGST and input SGST will be reversed. So the narration is goods distributed as free sample, goods stolen and goods destroyed by fire, and input CGST and input SGST reversed. क्योंकि जब खरीदे होंगे इस तरह के गुड्स को तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इस पे GST पे किए होंगे, सो हमें इसका इनपुट GST की तरह डेबिट हुआ होगा. लेकिन जब इस तरह के गुड्स किसी भी रीज़न से बिज़नेस में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बिज़नेस से चले जाते हैं, तो हम उससे रिलेटेड जो भी GST होता है उसको हम रिवर्स कर देते हैं. सो बेसिकली हम लोगों ने टोटल 9 एंट्रीज़ को स्टडी किया कि व्हाट आर द एंट्रीज़ व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर सेल विद इन अ स्टेट विच इज़ ऑल्सो नोन एज द इंटर स्टेट सेल. इफ़ यू परचेज एनी गुड्स सो द परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक और क्रेडिटर. सेल करेंगे तो बैंक और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST. For purchase return, creditors account debit to purchase return, to input CGST, to input SGST. For sales return account debit, output CGST debit, output SGST debit to debtor. For purchase of fixed assets account debit, input CGST debit, input SGST debit to bank. For expense account debit, input CGST debit, input SGST debit to bank. For income, bank account debit to commission received, to output CGST, to output SGST. For goods withdrawn by the proprietor for personal use, so the drawing account debit to purchase, to input CGST, to input SGST. For goods given as free sample and loss by goods or goods stolen, so the advertisement account debit, loss by fire account debit, loss by theft account debit to purchase, to input CGST, to input SGST. So basically input CGST और input SGST डेबिट होता है. उसी तरह से आउटपुट CGST एंड आउटपुट CGST क्रेडिट होता है. बट कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पे हम इनपुट GST और आउटपुट GST को रिवर्स करते हैं, यानी क्रेडिट को डेबिट करते हैं और डेबिट को क्रेडिट करते हैं. एंड आफ्टर डैट
सारी एंट्रीज पास करने के बाद देयर आफ्टर वी सेटिंग ऑफ इनपुट CGST अंडर आउटपुट CGST। यानी उसके बाद हम लोग करते क्या है, बेसिकली जितना हमारा इनपुट CGST होता है और आउटपुट CGST होता है, देखिए CGST को CGST के साथ सेट ऑफ करते हैं। बेसिकली इनपुट CGST का मतलब होता है GST पेड एंड आउटपुट CGST का होता है GST रिसीव्ड। सो हम जितना GST पे किए हैं और जितना GST रिसीव किए हैं उसे हम सेट ऑफ करते हैं। सो द नेक्स्ट एंट्री विल बी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST। सिर्फ CGST के साथ देख रहे हो कि CGST को मैंने क्या किया, अगेंस्ट क्या, यानी इनपुट CGST जो GST रिसीव पेड किया था उसको हम लोगों ने GST रिसीव के अगेंस्ट कलेक्ट एडजस्ट किया, क्योंकि आउटपुट CGST का मतलब है GST मिलना और इनपुट CGST का मतलब होता है पे करना। तो मैंने क्या किया, सपोज़ हमने 1000 GST पे किया है और 1200 GST मुझे मिला है, तो 200 रुपीज़ हम किसको देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ CGST। एज इट इज उसी तरह से हम लोग SGST को भी एडजस्ट करेंगे, यानी कि इनपुट SGST अगेंस्ट विथ आउटपुट SGST। ओके, नंबर 10 entry will be the for setting of input CGST again output CGST. So the entry will be output CGST to input CGST, and thereafter we setting of the input SGST against input output SGST। क्योंकि CGST को हमने एडजस्ट किया उसी तरह से हम SGST को भी एडजस्ट करेंगे। सो एंट्री विल बी, जहाँ पे CGST लिखा है वहाँ पे अब आपको बस आउटपुट SGST डेबिट टू इनपुट SGST एडजस्ट किया। सो मैंने अभी आपको बताया कि सपोज़ आपने आउटपुट GST आपको रिसीव हुआ 1200 और आपने 1000 रुपीज़ पे किया है एज अ GST, सेम एट इज़ इट इन दिस सिचुएशन। सो यू कैन सी डैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको देना है 200 रुपये और यहाँ पे भी आपको देना है 200 रुपये। ओके, सो स्टेट गवर्नमेंट को देना भी है 200 रुपये और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 200 रुपये देने हैं सेट ऑफ करने के बाद। सो आफ्टर डैट यू विल पास द नेक्स्ट एंट्री, that is output into number 12 because of 10th ये थी, 11th मैंने अभी जस्ट बताया, और 12th एंट्री आउटपुट CGST डेबिट 200 बचा और आउटपुट SGST डेबिट 200 टू बैंक। सो प्लीज़ डू नॉट कन्फ्यूज़ कि आपको इसके बाद क्या एंट्री पास करनी है, यानी सारा कुछ करने के बाद, यानी आफ्टर पासिंग द होल एंट्रीज गिवन इन योर क्वेश्चन, आपको फिर CGST को SGST के इनपुट CGST को आउटपुट SGST के साथ एडजस्ट करना है, यानी GST पेड को GST रिसीव के साथ एडजस्ट करना है, और जितना ज़्यादा पैसा आपके पास बैलेंस बच रहा है इन आउटपुट CGST उसे आपको गवर्नमेंट को पे कर देना है। ओके, so basically there are 12 entries related to this topic. Next part of entries related to the in case of interstate supply of goods and service, that is sales from one state to another state। जैसे अभी हम लोगों ने जनरेटरी स्टडी की कि जब हम सेल करते हैं विद इन स्टेट, यानी स्टेट के अंदर हम सेल करते हैं, यानी यूपी के अंदर आगरा से वाराणसी के बीच में सेल हो गया, आगरा से कानपुर के बीच में सेल हो गया, कानपुर से इलाहाबाद के बीच में सेल हो गया। सो इसे हम लोग एक सिटी से दूसरे सिटी के साथ क्या हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी यहाँ पे सेल जो हुआ है वो एक स्टेट्स के अंदर ही सेल हुआ है। बट जब हम कोई भी सेल विद इन स्टेट ना करके विद इन बिटवीन द स्टेट करते हैं, यानी दो स्टेट्स के बीच में, सपोज़ राजस्थान ने मध्य प्रदेश के साथ ट्रांजैक्शन कर लिया, मध्य प्रदेश ने दिल्ली के साथ ट्रांजैक्शन कर लिया, दिल्ली ने गुजरात के साथ ट्रांजैक्शन कर लिया। सो सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी कैटेगराइज इन द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इन दिस सिचुएशन में यू नो वेरी वेल कि वहाँ पे CGST SGST चार्ज नहीं होता, वहाँ पे IGST चार्ज होता है, जो बेसिकली हमने बताया दिया बेसिकली 3 kinds ऑफ GST, CGST, SGST एंड IGST। CGST एंड SGST विल बी चार्ज ऑन द
intra-state supply of goods and services, whereas the IGST will be charged on inter-state supply of goods and services, and which is means the between two state. So in this situation क्या entry pass होगी? Let us discuss it. The first entry will be related to the purchase of goods. You know very well, purchase account debit to bank or credited. अब यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे थे? इनपुट CGST, इनपुट SGST, बट यहाँ पे हम लोग सेल किसके बीच में कर रहे हैं? इंटर स्टेट, यानी दो स्टेट के बीच में. तो यहाँ पे क्या चार्ज होगा? इनपुट IGST. सो बेसिकली वो क्लियर है. वैसे ही सेल में भी करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट्स IGST, यानी GST रिसीव किया तो इनपुट IGST लिखा, सॉरी GST पे किया तो इनपुट IGST लिखा, और अगर GST रिसीव किया तो आउटपुट IGST लिखा. वहाँ पे CGST SGST का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. सेम एज इट इज़ फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर एक्सपेंस इनकर्ड आउटसाइड द स्टेट. ठीक है, स्टेट के बाहर अगर हमने कुछ खर्चे किए तो उस सिचुएशन में एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक. सेम एज इट इज़ फॉर इनकम अर्न फ्रॉम आउटसाइड दी स्टेट. अगर इनकम के स्टेट के बाहर हमें कोई इनकम जनरेट हुई तो उस पर भी हम IGST रिसीव करते हैं. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम टू आउटपुट IGST. ओके, सो बेसिकली आपको समझना ये है कि जब आप एक स्टेट के अंदर सेल करते हो, और ये दो स्टेट हैं, थोड़ा हम और इसको क्लियर कर देते हैं. सपोज़ अगर हम वाराणसी से कानपुर के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसको पे हम CGST और SGST चार्ज करते हैं. और बेसिकली अगर हम यूपी से गुजरात के बीच में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें हम लोग IGST चार्ज करते हैं. और जो इनके बीच में ट्रांजैक्शन होता है विद इन अ स्टेट, क्योंकि ये दोनों यूपी के सिटीज़ हैं, दोनों यूपी के ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट है. सो CGST SGST में 50% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. अगर रेट ऑफ GST इज़ 12%, सो 6% विल बी टेकन बाय CGST एंड 6% विल बी टेकन बाय द SGST. सो बेसिकली हम लोगों ने आज इस पूरे टॉपिक में हम लोगों ने जनरल एंट्री डिस्कस की. द जनरल एंट्रीज विच आर रिलेटेड टू द इंटर स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दैट इज़ द विद इन स्टेट और बिटवीन द स्टेट. तो हमने डिफरेंसेस ये पाया कि जहाँ पर हम लोग इनपुट CGST या SGST को डेबिट कर रहे हैं वहाँ पे हमें सीधे इनपुट IGST डेबिट करना है. डिफरेंसेस यही है. एज इट इज़ यहीं पे भी हमें यही करना है, आउटपुट IGST. ओके, बिकॉज ऑफ अगर यही ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट ना होकर इंटर स्टेट हो, विद इन बिटवीन ट्रांजेक्शन हो, स्टेट विद इन ना हो, बिटवीन टू स्टेट हो, सो उस सिचुएशन में क्या क्या पैराग्राफ चेंज होगा. वैसे ही परचेज रिटर्न के केस में भी वही होगा. इनपुट CGST ना होकर क्या हो जाएगा, तो इनपुट IGST हो जाएगा. सेम एज इट इज़ आपको यही करना है. आउटपुट CGST SGST की जगह हो जाएगा आउटपुट IGST. इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ है, होगा डेबिट ही. कॉन्सेप्ट वही है, बट यहाँ पे भी CGST IGST फिक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनपुट IGST डेबिट हो जाएगा. एक्सपेंस के केस में भी यही होगा. ओके, फिर सेट ऑफ भी करेंगे वैसे ही, जैसे यहाँ पे आउटपुट CGST चार्ज, वहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही सेट ऑफ करेंगे आउटपुट IGST टू इनपुट IGST. और अगर कोई एक्सेस पैसा होगा तो उसे बैंक के थ्रू पे कर देंगे. सो बेसिकली आज के इस पूरे वीडियोज़ में वी डिस्कस द इम्पॉर्टेंट topic related to the accounting for goods and services. In this topic, we discuss the various journal entries related to the intra-state supply of goods and services and interstate supply of goods and services. And also we discuss the reversed some of the special situation where GST paid is reversed in the following cases. It means अगर input GST है
तो वो रिवर्स हो जाता है यानी क्रेडिट हो जाता है, और अगर आउटपुट जीएसटी है तो वो क्रेडिट होने की जगह डेबिट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टडी द परचेज रिटर्न, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स लॉस्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड, goods distributed free sample, goods given away as free charity. So as well it is same as the output GST is reversed in case of sales return. So basically output GST क्रेडिट होता है, हम उसको डेबिट कर देते हैं रिवर्स में, और इनपुट GST जो होता है वो डेबिट होता है, उसको हम रिवर्स करके क्रेडिट कर देते हैं। सो आई होप कि आज हम लोगों ने जो कुछ भी स्टडी किया आप you will understand very clearly and easily. So if you have any kind of doubt related to this topic, please ask me in the WhatsApp group as well as in the online classes. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.